Sir, today we will discuss the constitutional provisions regarding Part 3, Union Judiciary. Straightforward, come to Article 124. Yes. See, देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट चैप्टर 4 यूनियन जुडिशियरी और पेपर 1 के लिए दिस इज द बेसिक कोर फंडामेंटल सोर्स फॉर एवरीवन. And it is started from Article 124 and going up to Article 147. मैं वन बाय वन थोड़ा सा पहले करता हूँ, फिर उस वापस उसके ऊपर रिविजिट करूंगा. And today I'll read the Constitution only. Okay, sir. Article 124 is confined to the establishment and constitution of Supreme Court. पहले मैं हेड पॉइंट को चेक कर लूं, फिर मैं वन बाय वन एंटर करूंगा. Which one is the important? This is also the important part. NJC which was stuck down. देखिए, ये NJC was inserted as Article 124A नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और यहाँ पर एक हेड लिखा हुआ है 2 और 2 जब देखें तो दिस इज द इंसर्टेड बाय दिस एंड फर्दर रिमार्क है यहाँ पर दिस अमेंडमेंट वाज बीन स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट in the case of Supreme Court Advocate on Record Association and another versus Union of India in its judgment dated 16/10/2017 AIR 2016 SC 117. This is the NJC case जिसके तहत इसको स्टक डाउन किया गया था. And this entire part is known as footnote. इसको हम लोग footnote कहते हैं. So ये पूरा provision stuck down है. So right now I would not enter into them. हाँ, 124 के यहाँ पर 7 clauses हैं. So we will see that now. 124B, 124C, 125 is talking about the salaries of the judges. इस पे भी this is not much relevant. Appointment of acting chief justice under Article 126. This is not much important. Appointment for ad hoc judges. Article 127. This is again not much important. Attendance of the retired judges at sitting of the Supreme Court. This is again not much important. Yes, the important part is Article 129, Supreme Court to be a court of record. Article 130, seat of Supreme Court, partially and virtually irrelevant these days because of the virtual hearing. Article 131, this is important, original jurisdiction of the Supreme Court. Article 132, this is again important here. Article 133, this is also the important.
25 के लिस्ट में ये सारा कुछ है जो हमने एक लिस्ट डेवलप किया था उसके अंदर ही है। आर्टिकल 134, दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट। Certificate itself sometimes important because this is connected with all this. 135 not much important. 136, it is the most important part of this union judiciary. Review, article 137, again it is the most important part. 138 not much important. 139 not much important. 139A, this is again a most important part for us. 141, again it is the most important part. 142, it is again the most important part. 143 is also the important. 144 we will skip, this is one line. And 145, 145, this is again the important. तो ये सारे प्रोविजन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. Let us come to directly at some important part, which is Article 124. Yes, 124. See, what is talking about this Article 124? जरा आप ध्यान से देखिए. 124 is the establishment and constitution of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, इसके ऊपर बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है. इसके दिस इज द ओनली आर्टिकल व्हिच वाज इंटरप्रेटेड बाय फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस, एनजेसी, ये सारा कुछ यहाँ से कनेक्टेड है. सो लॉट ऑफ थिंग कनेक्टेड विद दिस लीडिंग केसेस स्पेशली. सो इस पार्ट को जरा ध्यान से देखिए. जस्ट क्लाउज बाय क्लाउज आई विल रीड इट. देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of a Chief Justice of India and Chief Justice of India, and until Parliament by way prescribes a larger number of not more than 7 other judges. So initially it was the sanction post for the Supreme Court was Chief plus 7. And see, एक चीज और यहाँ पर आप देखिए, here is the point is the star. यहाँ दिख रहा है 7 से पहले एक स्टार है. This is I'm talking about this star only. 7 other judges. So और यहाँ पर इसी के साथ एक और पार्ट है, until Parliament by law prescribes a large number. So what Parliament did, this is the star जो ऊपर हमने मार्क किया था 7 से पहले. Now 33 Supreme Court नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट, पार्लियामेंट ने बाय लॉ मींस एक एक्ट लाया. दैट द नेम ऑफ द एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट. और इस एक्ट में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुआ था, बट लास्ट अमेंडमेंट वाज इन 2019 with effect from
9819, and by way of this, now there is a 33. So the number of judges is 33 plus CJI. Am I clear up to this point or not? Right, sir. Clear. Now, there is certain procedure written there. Every judges of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal on the recommendation. This is the important part. On the recommendation of the NJC referred in Article 124, it was struck down, and shall hold office until he attained the age of 65 years. So what is this? Exit. So clause 2 is talking about the way of entry. This is the appointment to the office, and this appointment by the President by warrant under his hand and seal. And this is the termination point, shall hold office until he's attained the age of 65 years. But there is certain proviso, and that proviso is important. Iske alawa, this is the only way to exit the office? No, there is certain more exit point, which is a judge may, by writing under his hand, address to the President, resign his office. So another exit point is resignation. A judge may remove from his office in the manner provided in clause 4, which is the impeachment process. The age of the judge of the Supreme Court shall be determined by such authority and such a manner as Parliament may provided the law. Third is, a person shall not qualify. This is the qualification. A person shall not qualify. This is the not only the qualification, this is the minimum qualification for the judges of the Supreme Court. A person shall not be qualified for the appointment as a judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India. One criteria, and addition to that, has been for at least 5 years a judge of High Court or a 2 or more such court in succession, or this is the or, not its and, or has been for at least 10 years as an advocate of a High Court or 2 or more such courts in succession, or is, in the opinion of President, a distinguished jurist. There is a lot of explanation. I will not enter into them. So this is clause 4, which was referred in clause 2. A judges of Supreme Court shall not be removed from his office except, this is the exception, and this is the process of removal, by an order of President. By President? President is the appointing authority. So उनसे नीचे रिमूवल अथॉरिटी होगा नहीं. So by an order of President passed after an address by each House of Parliament, supported by a majority of the total membership of the House, and by, क्योंकि see, एक चीज ध्यान देखिए, supported by a majority of the total member of this House. Means what? जितने भी मेंबर अवेलेबल हैं, मेजॉरिटी होनी चाहिए.
बट इसके बाद एक और शब्द लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एंड. सो ये डबल लेयर चेक है. जैसे आपके एओआर एग्जाम के लिए दो है कि हाँ सारे पेपर में 50% मार्क्स होने चाहिए और 60 एग्रीगेट भी होने चाहिए. So that kind of thing is this. A majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the member of the total house, member of that house. What is the meaning of that? जितने भी मेंबर हैं पार्लियामेंट में उसके 2/3 से कम नहीं होने चाहिए और जित प्रेजेंट उतने प्रेजेंट नहीं होने चाहिए उससे कम, और जो भी प्रेजेंट हो उससे ज्यादा उसकी मेजॉरिटी. Present and voting has been presented to the president in the same session. Condition is also there in the same session for such removal on the ground of the proved, and ground is also there, proved misbehavior or incapacity. So removal के लिए कितने प्रोसीजर हैं, कितने पॉइंट हैं, आप जरा देखिए. फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल एक ऑब्वियस रिमूवल है बाय द एज अटेंडिंग 65 years, isn't it? Yes, sir. दूसरा है रिजाइन और तीसरा है क्लॉज 4. and no other way of removal of the judge from his office. और तीसरा चौथा ये कह सकते हैं बाय डेथ. and no other way is existing here. Same condition is applicable for the High Court also. Similar condition, same condition. See, clause 4 is done. Clause 5 is what? The Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for investigation and proof of misbehavior or incapacity of the judges under clause 4. So this is clause 5 is the supplementing procedure for clause 4. Now, every person appointed to be a judge of the Supreme Court shall before he enter upon his office make and subscribe before the president or some person appointment in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in third schedule. तो ओथ सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, उसके पहले ऑफिस होल्ड नहीं की जा सकती. एंड फाइनली no person who has held office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India. ये बार है. आफ्टर रिटायरमेंट आप लॉयर की तरह एक्ट नहीं करेंगे किसी भी अथॉरिटी के सामने. Am I clear up to this point or not? Right, sir. But sir, clause 6 में सब्सक्राइब का क्या मीनिंग बनेगा सर? Clause 6 में oath subscription. Okay, sir. Okay. Oath subscription. So this is the vital point. मैं जो point out करना चाह रहा हूं दो सेंस में, one as a lawyer, another as a judge.
So I'm taking a reference from as a judge and I will apply it during our analysis to the advocate in paper 3. 2 point. One is the entry point. Another is the exit point और in between the conduct. अभी एक जस्टिस वर्मा का केस काफी सरफेस पे है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके अगेंस्ट मिसकंडक्ट प्रूव्ड हैं और वो पार्लियामेंट को रेकमेंड कर दिया गया है कि प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं. बट बिफोर दैट it was also suggested by the chief to them to please resign and exit the office, and he refused and then forwarded to them. Am I clear up to this point? Now the analysis part is this. First is the entry, another is exit. अब मैं इसके बीच की बात करता हूं. ये पूरा मैटर मैं शिफ्ट करता हूं टुवर्ड्स एडवोकेट, बिकॉज दिस इज अ नोबल प्रोफेशन. तो किसको एडवोकेट के लिए एंट्री देनी चाहिए? Who is, what should be the eligibility for the advocate? Only degree holder, or there should be something? Yeah, there is something more. Yes, of course there is something more. और ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एंट्री है, दिस इज अ मिनिमम, इतना तो होना ही चाहिए. इसके अलावा और भी क्राइटेरिया कोई सेटअप की जा सकती है. दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एज पर. सो एक बार लोगों ने एंट्री कर ली. अब एंट्री करने के बाद अब आपको ये पता चलता है कि दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर दिस प्रोफेशन. Then is there any way to remove from that profession? Or the way of removal is very limited? Or whether the way of removal is very transparent? Or the way of removal is very specific and beyond the normal procedure? The answer is exactly yes. क्योंकि जो नॉर्मल और अदर प्रोसीजर है उससे बिल्कुल हट करके प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एक अलग एक्सपर्ट के थ्रू रिमूवल है. ऐसा नहीं है कि सीपीसी और इवन डिसिप्लिनरी कमेटी जिस तरह से चलती है उस तरह से चले और एग्जिट करे. पॉसिबिलिटी है ना कि सिस्टम के अंदर हो सकता है कि अनएक्सेप्टेबल पर्सन उसके अंदर एंट्री ले ले, और यदि ऐसा होता है तो उसके रिमूवल का क्या वे? एडवोकेट एक्ट के अंदर रिमूवल का कोई प्रोसीजर नहीं है. डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में भी रिमूवल नहीं. डिस्क्वालिफिकेशन है, बट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम एंट्री. I will come back into the Advocate Act. जो set of persons enter करते हैं into the noble profession, usually they are among them. Only उन्हीं लोगों में से लोगों को पिकअप करके जजेस के लिए पिक किया जाता है. मैंने इसको इसलिए अभी आपको बतलाया क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट एंड इश्यूज पर्टिनेंटली टिल द डेट इज कंटिन्यू. किसको एंट्री देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या ओनली रिकमेंडेशन के थ्रू होना चाहिए, क्या चेक एंड बैलेंस है, कैसे ये प्रोसीजर होता है, ये बहुत लंबा डिबेट का इशू है अक्रॉस द नेशन. डज दिस ट्रांसपेरेंट और नॉट? डज दिस मे बी इम्प्रूव्ड और नॉट?
और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये डोमिनेट करेगा यानी एग्जीक्यूटिव डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, पार्लियामेंट डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाए। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इनटू द एंट्री, और जो एंट्री में आएंगे वही आगे पूरे सिस्टम को रेगुलेट करें, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे यहाँ एडजुडिकेशन के लिए ये कोर्ट इटसेल्फ, because it is an autonomous and independent institution. और इवन इन एनी मैनर रेगुलेशन में किसी की एंट्री होती है तो ट्राइब्यूनल के तरह वो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा। सो मैं इस पॉइंट को भी यहीं छोड़ता हूं। एंट्री, एग्जिट एंड प्रोसीडिंग्स, 3 डिफरेंट सेगमेंट्स पे, अब आप उसको देखिएगा। अब मैं सीधा सीधा एंटर करता हूं आर्टिकल 129। थोड़ा मैं आज फास्ट मूव करूंगा। दिस इज सिमिलर टू आर्टिकल 215 which is concerned to the High Court. Supreme Court to be a court of record. This is one line article. The Supreme Court, the word is shall be a court of record. Okay. And shall have all the powers of such a court. What is the power of such a court? What is all the powers of such a court? That is the inherent power for everything. एक लाइन में, एक वर्ड में, एक झटके में मैं बोलकर निकल रहा हूं इनहेरेंट पावर। इसका मतलब आप लोग जरा सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कई डिस्कशंस हमारे हुए हैं, कई सेशन डेडिकेटेड हैं डायरेक्टली इनहेरेंट पावर, which is all those powers। एक लाइन में यदि मैं डिफाइन करूं तो all those power which is required to solve a case but not let down by the parliament. It, आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि not let down, अभी तक वो लिखा नहीं गया है, उसके लिए हम पार्लियामेंट प्रोसीड नहीं करेंगे, उनके प्रोसीजर का वेट नहीं करेंगे, बट कंडीशन इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन हैंड। जुडिशियल एक्सरसाइज के दौरान यदि कोई इश्यूज आता है, लाइक क्रिएशन ऑफ jurisdiction, by molding the relief at 142, it is let down. 142 is the let down. I'm saying not let down. okay. सर रवि कुमार वाला ऑर्डर है ना सर, उसमें सर प्रिस्क्राइब नहीं था प्रोसीजर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। सर मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी तक लिखा ही नहीं गया है। सर रूपा अशोक हुर्रा वाली जजमेंट में नाउ अब वो लिखा गया, आप लिखोगे, before that it was not let down, but once Rupa Ashoka Hurra came into the existence, the law is let down. But again still there may be certain problem जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, you know, improvement is required और something injustice हो रहा है और justice के लिए कोई वे और कोई प्रोसीजर नहीं आया है, बचा है, something more may be let down. So something like 151 of the CPC, something like that. Inherent, see what I am talking about, the inherent. Yes. Inherent means what? That is also written in the 151, even in 482. Yes. But 151 and 482 is the statutory power, which always having certain limitation.
but the constitution itself a mother of any of the statutes, isn't it? Yes. Not only the statutes, even the constitutional institution or organ or body or authority, whatever it may be. So constitution empowered to the Supreme Court regarding all the powers of such a court, and all the powers is the inherent power. And inherent power means to proceed adjudication. Is there any power is missing which is not let down by the parliament? Court may create for their own, including the power to punish for the contempt of itself. आप याद रखिएगा, till the date of constitution, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया था, वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं था. और जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की बात करेंगे तो इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1971. सो कैन यू से दैट कि 1950 टू 1971 कंटेम्प्ट प्रोसीजर था ही नहीं? यस, इट वाज देयर. लिखा हुआ नहीं था? यस, इट इज. प्रोसीजर कैसे चलता था? बिकॉज ऑफ दिस inherent power or continuation of that, including, the word is including, yani all the powers of such court में एक power वो भी है जो include है, and that is the power to punish for contempt of itself. Am I clear up to this point or not? Is there any doubt? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज. All the power of such a court, including the power to punish for contempt of itself. So my point is, very limited point is, all the powers के अंदर, whatever it may be, A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y, Z, whatever it may be, उसमें से एक पावर ये भी है. This is one of the power जो included in all है. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. In another way, we can say this is one of them, not this is the only. समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यहां मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, the power to punish for contempt of itself, it is not the only power for court of record. It is one of the power for court of record. So what is the other power and where does it flow? This is subject to your research as and when required. और सही मैम ने बोला अभी कि by the exercising of this power अशोका रूपा हुर्रा आया है. Now, one more thing I would like to discuss with you. Does any power of Supreme Court empowered or conferred either by Article 32(2) or Article 129 or Article 145 or Article 136 or Article 137 or whatever may be? आप लोग मुझे सिर्फ एक बात बताइए, और वो क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूं और आपसे सुनना चाहता हूं कि ये सारे पावर क्या वाटर टाइट कंपार्टमेंट में, यानी एक एक्सरसाइज होगा तो दूसरा नहीं, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं, ऐसा है क्या? द आंसर इज नो. मीनिंग देयर भाई कि एक पावर और दूसरे पावर को मिल करके भी एक्सरसाइज किया जा सकता है.
यानी 32 का कोई मैटर चल रहा हो, 32 के पावर को इन्वोक किया और जरूरत पड़े तो 129 भी कर सकते हैं, 136 भी कर सकते हैं, 140। पॉइंट यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए क्या एक लिमिटेड विंडो का वेट करना होगा, और दे कैन एक्सरसाइज? द आंसर इज दे कैन in any matter, or if the matter is not available, they can also suo motu take and exercise the power. और एक पावर नहीं, दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तीन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और सारे का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. But it reflects some sort of, unlimited, but there is certain limitation, and limitation is jurisprudential norms and fairness. Even though अशोका रूपा हुर्रा का एग्जाम्पल हम देखें तो वहां भी फेयरनेस का ही एग्जाम्पल था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द मेन ग्राउंड इज देयर, थिंग्स आर फेयरली इज गोइंग ऑन, और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नाउ, मीनिंग देयर भाई किसी भी घटना से, इवेंट से, स्पेसिफिक इवेंट से ये यदि पता चले कि यहां मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, और उस जस्टिस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को करेक्ट करने का कोई रास्ता ना हो, कोई लीगल प्रोसीजर ना हो, कुछ भी ना हो, तो वैसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट कैन इन्वोक एनी पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू इंश्योर द जस्टिस। अब सवाल आपका होगा, इन विच प्रोसीडिंग? इन एनी proceedings are not confined to exercise of this power. अब एक कह रहे हैं कि एक सिविल प्रोसीजर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कैसे इन्वोक कर सकता है? Yes, constitution is above the statutes, they can, and that power can be invoked if they realize, if they satisfied there is a miscarriage of justice. We cannot continue to this miscarriage of justice, and this is required because this court is the last court. आगे कोई कोर्ट है नहीं जहां पर उसका करेक्शन होगा, isn't it? या आगे इसका कोई कोर्ट है? कहां अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को? पाकिस्तान में या यूएन में? नहीं हो सकता। सो दैट्स द एंड। सो वो यहाँ पे करेक्शन के मोड होने चाहिए, एंड दैट्स व्हाट फॉर दैट। सो इनहेरेंट पावर क्या है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल द पावर ऑफ सच कोर्ट? दिस इज फॉर यू टू फाइंड आउट, बट एक रफ आइडिया हमने दिया है, और वहां पर एक और वर्ड है, वो वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वर्ड इज, मैं फिर से इसको हाईलाइट करता हूं, this is another word is there which is the court of record. मीनिंग देयर भाई इनके प्रोसीडिंग्स के जो भी रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड प्रूव्ड डॉक्यूमेंट है फॉर ऑल द कोर्ट। उसके लिए आपको प्रूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर द प्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स। नाउ there is a definition I'll extract from DD Basu and will share with you. Come to this particular original jurisdiction, Article 131. But before coming to the original jurisdiction, I would like to come to directly appellate jurisdiction, and especially those appellate jurisdiction which is extraordinary. आपको, let me start from this part only. See, original jurisdiction.
subject to the provision of this constitution. This is the important part. Just think about it. Subject to the provision of this constitution. यहाँ पर यदि लिख दिया जाता this chapter means what? Confined to this chapter only. This part of the constitution. मतलब confined to the union part only. But this extension is across the constitution, subject to the provision of this constitution, means entire constitution. The Supreme Court shall, so मैं ये कह रहा हूँ this subject to के बाद क्या है वो बड़ा important है. So subject to the provisions of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute. Between the government of India, one side, and one or more state on another side, petitioner and respondent, or between the government of India and any state at one side, or states on one side, any state or states on one side, and one or more other states on the other side, or between two or more states. ये सारे लोकस हैं कि who would be the party. लीडिंग केस ये कहता है कि इस पार्टी के साथ यदि किसी प्राइवेट पार्टी को जोड़ दिया जाए, does this suit is maintainable? जजमेंट कहता है no party is, नहीं कहने का मतलब यहाँ पर ये no party is allowed. But sometimes हुआ ये है कि लोगों ने क्या किया है कि पहले yes government is there, state is there, इसी पूरे टर्म को मैं एक लाइन में कहूं और जो मैं कहता भी हूं आप लोगों के साथ. Ahmed sir, please mute your mic. So dispute, Sorry. original jurisdiction in any dispute, इस पूरे तीन को मैं एक वर्ड में यदि कहूं तो ये कहूं among the federal organ of the India. फेडरल ऑर्गन्स यूनिट क्या क्या है? द स्टेट एंड सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट, दैट्स इट. इन्हीं दोनों के बीच में है. आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? अमॉन्ग द फेडरल ऑर्गन यूनिट ऑफ इंडिया. इन्हीं के बीच में क्या क्या है? फेडरल ऑर्गन यूनिट, ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स इट. इन्हीं के बीच में है. इतने वर्ड लिखने के बजाय वो छोटा सा वर्ड प्रिसाइसली एंड केयरफुली कवर कर लेता है इन तीनों ए बी एंड सी को. वो मैं कहना चाह रहा हूं. बट आप एलेबोरेट करें तो अच्छी बात है, और ये एलेबोरेशन मुश्किल नहीं है, आसान है. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये तीनों तो लोकस स्टैंडाई है. दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस टू लाइन. जब भी आप आर्टिकल 131 की बात करें तो इस लाइन को आप पक्का और ढंग से याद कर लीजिए, वर्बेटम. क्योंकि ये एक अलग कहानी कहता है. इफ एंड इन सो फार एज द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स, so this is talking about the nature of dispute. The dispute involves any question, whether of law or fact, on which the existence or extent of the legal right depends. If the legal rights का existence और extent नहीं exist करेगा तो सूट मेंटेनेबल नहीं होगा.
सो फ्लो फ्रॉम लीगल राइट्स कहां से है? इट मस्ट बी the provision of this constitution. कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो. बट द क्वेश्चन इज अगेन, फिफ्टी से पहले का क्या, 49 से पहले का क्या? क्योंकि उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन ही एग्जिस्टेंस में नहीं था. थिंग्स आर कमिंग फ्लोइंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑल्सो. उसके लिए नीचे प्रोवाइजर. साथ में एक चीज और है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट. कोई भी चीज के लिए रेमेडी यदि अवेलेबल है इन एनी कोर्ट, किसी भी इस तरीके का भी डिस्प्यूट और रेमेडी अवेलेबल है, तो वो 131 मेंटेनेबल नहीं होगा. मीनिंग देयर बाई देयर इज नो अल्टरनेट रेमेडी फॉर आर्टिकल 131 एंड if there is any remedy available for the dispute, 131 नहीं. ये टेस्ट होता है ड्यूरिंग द एडमिशन, 131 इज मेंटेनेबल और नॉट. सीरीज ऑफ जजमेंट है, 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आपको इसमें दिखेंगे. एक डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी शेयर कर रखा है 131 पे, शॉर्ट एंड स्वीट प्यारा सा. वो कौन कौन से रेमेडी अवेलेबल हैं, कैसे हैं, वो सारा कुछ उसमें डिस्कस किया हुआ है. विल शो यू सम टाइम, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मुझे थोड़ा और आगे प्रोसीड करना है. सो फिर से मैं जरा कंसोलिडेट करूं. देन 131 के 3 डिफरेंट फेसेट हैं. जब भी आप 131 लिखें, आप ढंग से लिख सकते हैं, 3-4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज subject to the provision of this constitution, the Supreme Court subject to the provision of this constitution, comma, the Supreme Court shall, comma, to the exclusion of any other court, comma, have original jurisdiction in any dispute. उसके बाद 3 locus standi हैं. So first part is this. Second part is locus ABC, and third part is the nature of dispute and its existence. Provided that such jurisdiction shall not extend to any dispute arising out of any treaty, agreement and engagement, यहाँ पे वो extend नहीं करेगा. Other similar institute which having been entered into or executed before the commencement of this constitution continues to operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute. तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करूं. फर्स्ट पार्ट इज ओपनिंग पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर. सब्सटेंशियली कहाँ है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्प्यूट वहां से रेज होगा. सेकेंड पार्ट इज किस पार्टी के बीच में होगा, लोकस स्टैंडाई क्या है. एंड थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द लीगल एक्सटेंट हियर, कहां से राइट फ्लो करेगा.
तो ये तीनों पार्ट को आप ब्रेन में रखिए, और किसी एक पार्ट से पूछा जाए आप वहां कन्फाइन रहेंगे, और यदि नहीं पूरा 131 पूछा जा रहा है, किसी भी एक पार्ट को मिस करके आउट ऑफ दीज 3 यू विल लूज योर मार्क्स। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ इतना ये 3 पार्ट ए बी सी लिख दी एंड दे आर हैप्पी, 1/3 मार्क्स आप डिजर्व करते हैं, बिकॉज यू रोट द ओनली दिस पर्टिकुलर पार्ट। और वो लिखते समय में लोग ये भूल जाते हैं, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखना। महेश जी, some voice is coming at your end. Unmute please. Sorry, mute please. Sorry. So this is the thing which is concerned to Article 131, और यही पे पूरा का पूरा जितना भी जजमेंट होगा, जो कुछ भी होगा, यहीं से कंफाइन होगा। You have to read it again and again. 132. This is the appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeal from the High Court in certain case. So Article 132 provides, Article 132, 133, 134, 2, 3, 4 provides only appellate jurisdiction on Supreme Court from High Court, certain cases. अब जरा देख लीजिए लिमिट कैसे है, इसको कैसे लिमिटाइज करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस पॉइंट पे ये करूंगा। ए, एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। व्हाट डज इट मीन दिस फ्रेज? सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगा बाय दिस आर्टिकल ओनली। 1, फ्रॉम 3 ingredients is written there, from any judgment, decree or final order. इंटरिम ऑर्डर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो जजमेंट, डिक्री एंड फाइनल ऑर्डर है, इट इज ऑलरेडी एंड पॉइंट ऑफ एनी डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट के लास्ट में जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर आता है। सो फाइनलिटी अटेंड करने के बाद नो इंटरिम स्टेज इज अलाउड। भैया रिवीजन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो अलाउड नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया है अपील के लिए, वो देख लीजिए। पूरा डिसाइड आप नीचे कर लो, तब जब फाइनली सेटल हो जाए, दिस इज द फाइनल ऑर्डर, डिक्री। अच्छा, ये है, और किस कोर्ट का? ऑफ अ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कितने कोर्ट हैं? सिर्फ हाई कोर्ट ही हैं? बहुत सारे ट्राइब्यूनल हैं, बहुत सारे कोर्ट्स हैं, बहुत सारी अथॉरिटी, किसी के लिए अलाउड नहीं। कंडीशन है, नैरो है, बिल्कुल फोकस है हाई कोर्ट के ऑर्डर से। एनी जजमेंट फ्रॉम हाई कोर्ट, एनी डिक्री फ्रॉम हाई कोर्ट, और एनी फाइनल ऑर्डर फ्रॉम हाई कोर्ट। ऑर्डर है फाइनल ऑर्डर, चाहे वो फाइनल ऑर्डर एक ही वर्ड में डिसमिस लिख दीजिए, तब भी हो सकता है, बट इट शुड फाइनल। Am I clear up to this point or not? On high court only. So nature of order को भी लिमिटाइज किया हुआ है, एंड फोरम को भी ये लिमिटाइज किया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है। इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये कहता है, अब उसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहा है, तो व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट? इट मे बी सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स। What does it mean, civil, criminal and other proceedings? Other proceedings में क्या आएगा? सिविल, क्रिमिनल तो वेरी क्लियर है, जो सीपीसी से चल रहा है सिविल है, जो सीआरपीसी से प्रोसीजर हो रहा है वो क्रिमिनल है। अदरवाइज व्हाट लेफ्ट? पूरे लिटिगेशन क्या सिविल और क्रिमिनल ही, और कुछ नहीं है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी है, रिट भी है, उसको कहाँ लेंगे आप?
सिविल का मतलब जहां जहां सिविल लिखा जाए वो नहीं होता है। सिविल का मतलब होता है दिस इज कमिंग थ्रू सीआरपीसी, सॉरी सीपीसी, सीपीसी के प्रोविजन से जो कंट्रोल होता है। बट देयर आर अदर प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। सो ये एक्सटेंशन है कि दिस इज नॉट कन्फाइंड टू द सिविल क्रिमिनल, दिस इज फर्दर एक्सटेंडेड टू द अदर प्रोसीडिंग। बट अगेन देयर इज अ कंडीशन, और वो कंडीशन फर्दर है, इफ the High Court certifies under Article 134A, or if this condition is not met, appeal not maintainable, appeal आएगा ही नहीं। कोई भी कंडीशन यहां से वायलेट हो, अपील नॉट अलाउड अंडर आर्टिकल 134। और यदि सर्टिफिकेट भी जो जाएगा, सर्टिफिकेट का नेचर क्लियर होना चाहिए, दैट the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution, of this constitution. क्लाउज 1 के अंदर बेसिक्स कंडीशंस हैं, एक कंडीशंस का भी वायलेशन, अपील इज नॉट मेंटेनेबल। सर्टिफिकेट का जो नेचर है वो लिखा हुआ है, द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल करेंगे और लिस्ट होगी, तो कोर्ट पहले वो एग्जामिन करेगी उस सर्टिफिकेट को कि वाकई ये सर्टिफिकेट का ये पर्टिकुलर पार्ट डिजर्व करता है या नहीं। And after the satisfaction, then court will proceed. If court is not satisfied, outrightly they can reject on the spot. And it is happening. It is happened, not happening, it happened. So this is Article 132. Just think, Constitution provided 132, 133, 134 and 136. 4 provision है for the purpose to approach the Supreme Court, especially 3, 32, 33 and 34 for the appeal. But कितने स्टैट्यूट्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अपील कर दिया है? अराउंड 30। कैन यू थिंक इट? थोड़ा सा और मैं आगे प्रोसीड करूं। अब सर्टिफिकेट के बारे में एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट आई वुड लाइक टू रीड दिस आर्टिकल 133 एंड मेक अ डिफरेंस। एग्जैक्टली सेम है। एन अपील shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceedings of a high court in the territory of India. What was the difference from 134? The first difference is in this part is Civil. here is confined to the only civil proceeding. However, 132 was confined to civil, criminal and other proceedings. Now the next question is, does this overlapping? The answer is no. Why? Another part says that if condition is the High Court certifies under the Article 134 that the case involves a substantial question of law of General importance. जनरल इम्पोर्टेंस। पहले क्या था? Constitution interpretation of As Constitution. interpretation of to the Constitution. Just have a look. Question of law as to the interpretation of Constitution. So Article 132 is confined to the interpretation of Constitution only. However, Article 133 is confined to
ऐसा लिखा तो नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द सिविल प्रोसीडिंग्स, एक्सेप्शंस इज नॉट देयर। ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं, हालांकि वो भी इंक्लूड हो जाता है। So that part is the overlapping, but involves a substantial question of law of general importance. General importance में CPC से related हो गया, जितने भी एक्ट हैं, सिविल एक्ट जितने आ गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, whatever you can imagine. The entire world is there. हर एक अपने आप में एक दुनिया है और बहुत सारे दुनिया वहां पे बने हुए हैं. तो entire world is there. And जनरल इंपॉर्टेंस यहां पर है, ये याद रखिएगा, दिस इज द जनरल इंपॉर्टेंस. एंड देन इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेट क्वेश्चंस नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. So general importance is there, and plus and there is notwithstanding in article 132, ये इसका सप्लीमेंट, उसको आप देख लीजिएगा. बट व्हाट आई वांट टू मेक आउट डिफरेंस, इट वाज द सिविल एंड वहां पर ये था, और यहाँ पर मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि there are two conditions there. One is the general importance, and also they have to write that in their opinion the said questions need to be decided by the Supreme Court. If this part is also missing, this certificate is not fit for this particular article. And similarly 134 is confined to criminal. Have a look on that. An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order, or Sentence. Sentence. what is the difference between article 133 and 34? There was a decree and here is a sentence. जो यही हो सकता है वहां हो ही नहीं सकता. In a criminal proceeding of a high court in the territory of India, high court is still there, territory of India is still there. If the high court, now there is also certain condition, and यहाँ general importance वाला condition नहीं है. This condition is entirely different. This condition in 3 part, and 3rd part is the only certified under article 134A that the case is fit one for appeal to the Supreme Court. Only this fit one is appeal for the Supreme Court. General importance, substantial question वैसा कुछ नहीं, fit है. एक कहता है on appeal on appeal, this is very clear, on appeal reversed an order of acquittal. क्लियर मेंशन है एक्यूटल, सेंटेंस नहीं है यहाँ पे. एक को एक्विट कर दिया गया हो, अपील फाइल किया हो, और हाई कोर्ट ने अपील को रिवर्स कर दिया और उसको पनिश कर दिया. दिस इज द वन कंडीशन. इसका दूसरा कंडीशन क्या है कि पहले पनिश किया हो और हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया. वो कंडीशन की बात ही नहीं करता है यहाँ. एक्विशन हो गया तो हो गया, उसमें मुझे नहीं एंटर करना. एक जो छूट गया उसको अपील में आपने कन्वर्ट कर दिया और सेंटेंस दे दिया. और सेंटेंस भी क्या, ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ. कैपिटल पनिशमेंट ओनली. तब ही अपील होगा यहाँ. और एग्जाम लिखते समय हम क्या करते हैं, ऑन रिवर्सल देख लेते हैं, एक्विटल को नहीं देखते, कोई भी अपील को ले लेते हैं. ये पहली मिस्टेक होती है. और डेथ के बजाय 2 साल 3 साल 4 साल सबको लेकर के हम यहाँ फिट करने की कोशिश करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, स्ट्रिक्टली कंडीशन मैच करना चाहिए ना सर. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. This is clause B, and clause A. Clause B says or.
has withdrawn from trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such a trial convicted, not acquitted, only convicted an accused person and sentenced him to death. कोई और punishment नहीं, सिर्फ death. Then this clause is there. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Very clear. Yes. अब आपको देख लीजिए, डेथ के अलावा एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, एंड प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट. आई एम शोइंग द अनदर दिस slide. One more things are there. Yes. This is what? This is the Supreme Court Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction Act 1970. 1970 में एक एक्ट बना जो सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल एपलेट जुरिडिक्शन को इनलार्ज किया. मैं इस शब्द पे हूं, इनलार्जमेंट. क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दैट इनलार्जमेंट? क्या इनलार्ज किया? लेट अस सी. सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, वो सारा कुछ पढ़ लीजिएगा. सिर्फ क्लाउज 2 पे मैं एंटर करता हूं. जस्ट रीड इट. Without prejudice to the power conferred on the Supreme Court in Clause 1 of Article 134 of the Constitution, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order and sentence in a criminal proceedings of a High Court in the territory of India if the High Court. Exactly the same word. Nothing changed. And without prejudice. But मैं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे कंफाइन रहना चाह रहा हूं कि व्हाट इज, आई एम कंफाइनिंग टू क्लाउज ए एंड क्लाउज बी ओनली इट विल कंपेयर विद दैट. और वो क्या है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं. यहां क्या है? हैज ऑन अपील reversed an order of acquittal, exactly same hai, of an accused person and sentence him to imprisonment of life or the imprisonment for the period not less than 10 years. आप देखिए सेंटेंस हिम टू के बाद क्या वर्ड था. इतना सारा जो वर्ड है और इसके अंदर जो ये वर्ड है, are you able to locate the difference? Yes, sir. Yes, It is sir. life and in that it was death. Life and less than So 10 for years. this purpose, when life imprisonment is there, imprisonment for period of less than 10 years की बात होगी, तो आप कौन से सेक्शन को इन्वोक करेंगे? The appeal will lie under Article 134. No, appeal will lie under Section 2 of the Supreme Court Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction Act 1970. Isn't it? Is there any mapping with the Article 170? Sorry, Article 134 and this appellate jurisdiction? No. No, sir. क्या आप ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को एक्विटल में कन्वर्ट कर दिया? लाइफ था, कन्विक्शन था बाय द ट्रायल कोर्ट, उसको एक्विटल में कन्वर्ट कर दिया और अब आपका क्लाइंट स्टेट यहां पर अपील में आना चाहता है. क्या ये सेक्शन इन्वोक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. इसलिए नहीं कर पाएगा कि दिस इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर ऑन अपील बाय. देखिए इसको मैं रीड करूं यहां से. इफ द हाई कोर्ट
has on appeal reversed an order of acquittal. Order of sentence नहीं लिखा हुआ है, order of acquittal and sentence him लेकिन आप जरा देखिए कि लेस देन 10 एग्जैक्टली 10 इयर्स में आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली 10 इयर्स में ये अप्लाई होगा, बट जैसे ही लेस देन 10 इयर्स होता है देन अपील के लिए वो सीआरपीसी का सेक्शन इन्वोक होगा जो इससे नीचे 7 साल के लिए है, और उससे नीचे क्या होगा, द ओनली एसएलपी. अदरवाइज वट एवर कंडीशन इज लेफ्ट, नॉट अपील, only SLP. It will help you to decide कि किस केस में अपील होगा और किस केस में SLP होगा. And for this purpose only मैंने एक हैंड नोट्स बनाया था आपके लिए, और वो आप देखिए. ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट एक्यूटल, ट्रायल कोर्ट एक्यूटल, हाई कोर्ट कन्विक्टेड, कन्विक्शन, अपील एंड क्रिमिनल एसएलपी. दिख रहा है? एसएलपी कहां होगा और अपील कहां होगा, ये आप डिसाइड कीजिए. अब हाई ट्रायल कोर्ट एक्यूटल, हाई कोर्ट एक्यूटल, अब आप यहां आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एसएलपी, नो ऑप्शन. ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन, हाई कोर्ट कन्विक्शन, एसएलपी ओनली, नो अदर वे. ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन, हाई कोर्ट एक्यूटल, ओनली एसएलपी, नो अदर. Am I clear up to this point, or is there any doubt? Are you able to take a decision properly कि क्या ले सकते हैं? इसी चीज को मैंने कुछ वर्ड्स में नीचे लिखा हुआ है, अब आप जरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. रूल्स तक भी है, एक पेज का भी है, और उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले फोल्डर में रखा हुआ है. और ये जो वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्रिमिनल एपलेट ज्यूरिडिक्शन, यही फाइल नेम भी है. सर ऑप्शन 1 जो है ट्रायल कोर्ट एक्विटल हाई कोर्ट कन्विक्शन, इसमें अपील स्ट्रोक एसएलपी क्यों लिखा है? सॉरी, जो सीरियल नंबर 1 है ट्रायल कोर्ट एक्विटल हाई कोर्ट कन्विक्शन, ऑब्लिक एसएलपी क्रिमिनल क्यों है? एग्जैक्टली यही आपका क्वेश्चन है ना? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में तो अपील अंडर वो क्रिमिनल अपील जाएगा. हाँ, दैट इज द पर्टिनेंट क्वेश्चन. आप मुझे ये बताइए सर, इस केस में डेथ दे दिया और इस पर्टिकुलर इनलार्जमेंट में कह रहा है लेस देन 10 इयर्स, हाँ, और नॉट लेस देन 10 इयर्स. व्हाट अबाउट लेस देन 10 इयर्स? अच्छा, ओके. इफ इट इज लेस देन 10 इयर्स देन एसएलपी. नहीं, एक और सेक्शन है वहां पे, शायद मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. लेट मी जस्ट फाइंड आउट, आई विल शो यू. सीआरपीसी का एक और सेक्शन है, Just to add to the answer, sir, उसमें there is a point of certificate also. Yes, one more section is there. Just a minute. One more section is there. That section is 374(1). Read with 379 and 380. यहाँ से भी अपील रूट होता है, यहाँ से भी अपील रूट होता है. बट उसके अलावा जो बच जाएगा, उसके लिए जहां नहीं रूट होता वो स्पेसिफिकली, तो वहां पर आपका एसएलपी ही आएगा. और सर जिस एक्ट में पर्टिकुलरली है, जिस प्रोविजन में एक्ट में प्रोविजन है कि भाई इससे अपील ही होगा, तो उसमें एसएलपी नहीं कर सकते. वो एक्ट के अंदर नहीं, एसएलपी कर सकते हैं. एसएलपी तब भी कर सकते हैं. एसएलपी इज द अल्टरनेट रेमेडी सर. ओके, वहां कर ही सकते, वहां भी कर सकते हैं. बट जब अपील प्रोवाइडेड एंड व्हाई मूव टू दिस एसएलपी. और सर लीव ग्रांट होने के बाद वो अपील में कन्वर्ट होगा, और यहाँ डायरेक्टली आपको अपील मिल रहा है. Am I clear up to this point or not? यस. और अब आप समझिए कि कैसे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है
जब हम हाफ हार्टेडली और थोड़ी क्लैरिटी के साथ नहीं जाएं तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। रिट लिखने में कितना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम अपील लिखें या एसएलपी लिखें। सर और एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये स्टैट्यूटरी अपील और एसएलपी में डिफरेंस क्या होता है? पहले डिफरेंस तो ये है कि एसएलपी इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी अपील इज प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट इटसेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, अपील एसएलपी इज नॉट एन अपील, इसका प्रेयर है कि ग्रांट टू मतलब उसके बाद वो अपील में कन्वर्ट होगा। दूसरा, स्टैट्यूट के थ्रू हो या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो, अपील का प्रोविजन है तो वो है। तो उसमें लीव मतलब उसमें सिर्फ इशू नोटिस के लिए हियरिंग होता है, लीव के लिए नहीं होता। हाँ, वहां मैंने वो अपील का पूरा प्रोसीजर चलेगा, यहाँ सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड एंड आफ्टर दैट अपील विल स्टार्ट। Discretionary एंड aspect is मोस्ट there in इंपॉर्टेंट SLP. पार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वंस यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, अभी आप देखिए इस पेज पे 4th पॉइंट जो हमने आपको मेंशन किया है, रूल 31A फॉर्म 28 ऑफ 4th शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट रूल्स, और यहाँ पर रूल 21, रूल 40, रूल 21, रूल 31A, ये सारे रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। इस पर्टिकुलर रूल्स का पर्टिकुलर मतलब इस ऑर्डर की जब आप बात करें 2019, 21 बाकी सब प्लीज म्यूट कर लें। Order 19 and Order 20. Order 19 is criminal appeal. Order 20 is civil appeal. Order 21 is civil appeal. Order 22 is civil criminal का order है, वो आप चेक कर लीजिएगा। But question is यदि आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर में जाएं तो इस रूल नंबर 1, 3, 5, इधर जो टेबल दिख रहा है आपको, yes. इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये रूल ही पर्टिनेंट है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में। Okay. बाकी आप पूरा पढ़ लीजिए न्यूज़पेपर के तरह, लेकिन इसको लॉ के तरह पढ़िए। सर 1 पॉइंट सर, एक काम करते हैं, अब पॉइंट के लिए ओपन करते हैं, प्लीज ओपन फॉर द पॉइंट। नहीं, बिफोर दैट मैं थोड़ा सा एक बात और मैं जरा कह लूं, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट आई हैव टू रिपीट इट अगेन। Just see 136, Article 136. This is the SLP. Here is started with subject to nahi, notwithstanding anything contained in this chapter. What does it mean? इसका मतलब ये है, इस चैप्टर में मैंने रफ लैंग्वेज में और अपने लैंग्वेज में मैं बतलाऊं, इस चैप्टर में जो कुछ भी है सबके ऊपर ये हावी है। इसके सामने सबको साइड किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं। So, notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may, in its discretion, the Supreme Court may. Usually क्या देखने को मिलता है? shall. May means इनकी मर्जी। The Supreme Court में in its, और इसी may को elaborate कर दिया है यहाँ पे, in its discretion. Itself reflect it is a discretionary jurisdiction, isn't it? Grant special leave to appeal. So अपील ग्रांट करने का पावर यहां पर है from any what? Judgment, decree, determination, sentence और order। यहां पर 5 टर्म है, जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर।
जुडिशियल वर्ल्ड में इस 5 नेचर ऑफ ऑर्डर के अलावा और कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? द आंसर इज नो। जजमेंट हो ही गया, डिक्री हो ही गया, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर इश्यूज इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, सेंटेंस हो ही गया, ऑर्डर हो ही गया, ऑर्डर में फाइनल एंड इनिशियल और इंटरिम कुछ नहीं लिखा हुआ है, मीनिंग देयर बाय एनी ऑर्डर। सो द जुडिशियल वर्ल्ड में जितने भी एडजुडिकेशन पार्ट हैं ये पूरे पंच तत्व से बने हुए हैं। क्या है पंच तत्व? अग्नि, हवा और यही सब है ना, एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर ये पंच तत्व है, एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस एंड ऑर्डर, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है। सो एनीथिंग फ्रॉम एनीथिंग। अभी अभी आपने देखा ऊपर कि फाइनल सिर्फ था। ये व्हाट अबाउट अवार्ड? Will it include award? नेक्स्ट टाइम से यदि इस तरह की खरखराहट से आवाज मेरा रिदम यदि टूटा, मैं वहीं रोकूंगा, टर्मिनेट करूंगा उस सेशन को। So from any judgment, decree, determination, sentence and order, पूरा का पूरा एडजुडिकेशन वर्ल्ड इन्हीं 5 चीज पे फोकस्ड है। उसके बाद आप आइए इन एनी काउज और मैटर, passed or made by any court, tribunal in the territory of India। अभी अभी हमने आर्टिकल 132 को डिकोड किया था, अभी आप उससे इसको कंपेयर कीजिए जरा सा। हमने ये फर्स्ट पार्ट फ्रॉम एनी, इन एनी और बाय एनी, इसका क्लास है 136 का। फ्रॉम एनी वर्ड अनलिमिटेड की तरफ लीड करता है कि यहाँ पर कोई लिमिटेशन ही नहीं। कहते हैं ना धरती, आकाश, पाताल, तीनों लोक की बात जब हम करते हैं, यही है वो तीनों लोक, इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर, ये एक पार्ट है। दूसरा इन एनी काउज ऑफ मैटर, ना काउज का नेचर कन्फाइन किया गया है, ना कुछ किया गया है, ना इसको ये कहा गया कि किस कोर्ट से, वहां तो हाई कोर्ट कन्फाइंड था। एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। So what is the limitation of there? Nothing। यही है ब्रह्मा, यही है विष्णु, यही है महेश, यही है अनलिमिटेड आदि गुरु। अब तो सर किसी भी केस को सर एसएलपी में लाया जा सकता है। Exactly, why not? Judicial order होना चाहिए। It means कि हाँ, So this is the unlimited power of the Supreme Court under Article 136। This is the Brahma, Vishnu, Mahesh। This is the Trilok, धरती, आकाश और पाताल। Nothing left। क्या बचा आप मुझे वो बता दीजिए, बट इसमें भी एक को बचाया हुआ है। दिस इज द लिमिटेशन, एंड द लिमिटेशन इज नथिंग इन क्लाउज 1 शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द आर्म्ड फोर्स। फोर्स को छोड़ दीजिए आप, इसको मत रहे, यही लिमिटेशन। और फोर्स वाले पार्ट में आपको यहां पर 4 वर्ड दिखेगा, एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस एंड ऑर्डर। वेयर इज वन द फिफ्थ? द डिक्री। यहां पे डिक्री का सवाल ही नहीं। आई गेस कि आर्टिकल 136 और इसके लिमिटेशन और इसकी जो जुडिशनरी डिस्क्रिशनरी पार्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड आर्टिकल इटसेल्फ रिवील्स एवरीथिंग। तो सर ऊपर वाले किसी भी सेक्शंस का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है, ना हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। वैल्यू नहीं रह जाता है, व्हाट डज इट मीन? दिस इज एन अल्टरनेट रेमेडी सर।
Alternate means what? Alternate. That remedy is also with you. This is the additional remedy to you. Alternate remedy means This is subject to satisfaction of the court. ये आपका right नहीं है. However, there is your right is there. Oh, that is the difference. ये उस कंडीशन के लिए है जब इनजस्टिस लाउडली हो, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर डिस्टर्बेंस पे, नॉर्मल एरर पे ये कोर्ट 136 एंटरटेन नहीं करेगी एंड नॉट बाउंडेड है. ये लेट डाउन लॉ है. Discretion. It means कि apart from 136, while I am approaching to the SLP, that is my right. Sorry? 136 को छोड़ करके दे किसी दूसरे में जो मूव Obviously, sir, obviously this, ये तो क्लियर वर्ड कह रहा है सर. जब राइट है तो उसमें तो मिलना चाहिए अपील का ऑर्डर. नहीं, ऑर्डर आपका राइट नहीं है. ऑर्डर इज योर राइट. डिस्क्रिशनरी पावर है. वेरी फेयर अपील में आप गए, आपकी फेयर हियरिंग इज द राइट. हाँ, आउटकम अपने आप उसके बेसिस पर आएगा. आप आउटकम को कैसे अपना राइट बना सकते हैं? इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. अंडर 136 देयर इज डिस्क्रिशन, बट अदर देन अंडर अदरवाइज डिस्क्रिशन क्या होता? सीज है हर जगह पे. जस्ट नाउ यू हैव टोल्ड दैट वेदर द डिस्क्रिशन इज सीज्ड इनटू द अपील, कि समवेयर उनका जुडिशियल माइंड अप्लाई करने का डिस्क्रिशन है या नहीं, फिर उनको क्यों जजमेंट देना है? That is right, but while we are differentiating between 136 and other provisions of the appeal, SLP, then under 136 it is discretion. But if I am not moving under the section 136, they are the right. What is the difference between the others and 136? सर, मैं अभी इस फोरम पे, इस मोमेंट पे, इस डिबेट में एंटर करने का कोई पॉइंट नहीं है. बट अपील एंड डिस्क्रिशन में क्या डिफरेंस है, राइट, वो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा. और यू नीड टू बी क्लैरिफाई योरसेल्फ. अपील जो ऑलरेडी स्टैट्यूटरी प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि इसके बाद का स्टेज अपील शुरू होगा. आप ये समझिए कि दिस इज नॉट एन अपील. आफ्टर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, देन अपील विल स्टार्ट. Yes. Once leave is granted, then appeal will start. Sir, Otherwise, would not. Now, अभी अजय जी आप रहने दीजिए, इस डिबेट को यहीं स्टॉप करते हैं. बाकी लोगों के लिए भी काम थोड़ा रहना चाहिए. They will do. We are running short of time, so that's what I want to conclude this particular part. So 136, 137 is the important part. Subject to the provision of any law made by the Parliament. So one condition is this: subject to any law made by Parliament or any rule made under Article 145, the Supreme Court shall have power to review. एक चीज जरा ध्यान से देखिए, यहां से पढ़ते हैं. The Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it. The Supreme Court shall have power to review of what? Its own pronounced or order made by it. Shall, Supreme Court shall. But there is a only catch word, and the important catch word is the subject to. Subject to, it says, यदि subject to नहीं होगा, then entire thing is the infructuous. Subject to the provision of any law made or any rule made. Now, let us discuss any law made. The answer is no till the date. Any rule made, the answer is yes. Supreme Court rules, and the specific order is Order 47 for the purpose of this review. And accordingly,
According to Order 47, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made. I guess I'm sufficient clear on this point. Yes, sir. So अब 139 को आज मैं नहीं टच कर रहा हूं. 141 and 142 will read later on, and rest part will read later on. Hopefully tomorrow read and conclude it. So let me just stop presenting and come to the normal point. Just give me a minute. Yes. यस कंटिन्यू कीजिए आप लोग. उसमें सर एक्चुअली सर जो बहुत सारी क्वेरीज आई थी उसमें सर क्या एसएलपी आनी चाहिए, अपील आनी चाहिए. वो क्वेरी देखिए, ये सारे क्वेरीज को मैं अभी एंटरटेन नहीं करूंगा. डिस्क्रिशनरी और अब राइट उसको आप लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको आप लोग खुद सोचिए. नहीं सर, उसमें जनरल था सर. ये सर नेसेसरी क्वेश्चन है सर. जब हाई कोर्ट रिफ्यूज करेगा, द पर्सन डज नॉट हैविंग एनी अदर रिलीफ to come to Supreme Court, SLP is alternative relief. So why there is so much debate about these things? नहीं, there is a lot of confusion sir. confusion है. दरअसल स्पेशल पार्ट का प्रोविजन हमारे एक्ट में कहीं एग्जिस्ट नहीं किया है. अब आप थ्रू आउट देखिए, जहां कहीं भी हाई कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, जितने भी प्रोसीजर हैं और सारे हिसाब किताब हैं, उसमें आपने क्या ये रियलाइज किया, नोटिस किया है कि स्पेशल प्रोविजन कहीं है? Sir, is there any special provision? No. No. Everywhere through the right is going on, and this is the one place जहां स्पेशल प्रोविजन है. दरअसल ये देखिए, आपका राइट एग्जिस्ट नहीं करता. सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है. जिस समय वो लीव ग्रांट करेगी, आपके लिए राइट क्रिएट हो जाएगा. नहीं है, थोड़ा लेजिस्लेटिव पावर ही है. आपके केस के लिए ये राइट क्रिएट हो जाएगा. और अब जब राइट क्रिएट होगा तभी अपील जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी कोर्ट इम्पुग्न्ड ऑर्डर में इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगी. तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब सेट असाइड, मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट नहीं. इंटरफेरेंस का ब्रॉडर मीनिंग है कि इवन कमेंट ऑन दैट, इवन कनकर करती है, उसको सस्टेन करती है, अलाउ करती है, फिर भी कोर्ट कुछ कमेंट करती है. This is also the interference. Something is clarifying. This is also the interference. या set aside, या partially modified, या जो relief है उसमें addition to relief, कुछ और relief को add करती है. They can do by invoking other powers. So Supreme Court is the normal. See, difference, classical difference यहाँ पर ये है कि हम लोग थ्रू आउट लाइफ ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट तक ट्रेवल करके आते हैं, और वो जो मोनोटोनस स्टेटस बना रहता है, वो जो पैटर्न चलता आता है, हम लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में वही पैटर्न को एस्टेब्लिश करे. वो है नहीं. सुप्रीम कोर्ट इज बियॉन्ड ऑफ ऑल दैट पार्ट. और सब में आप जब सिविल में चलते आएंगे तो सिविल के नॉर्म्स वहां पर फॉलो होते चले जाते हैं. क्रिमिनल से आ रहे हैं, उसके नॉर्म्स फॉलो होते हैं, अदर प्रोसीडिंग्स के नॉर्म्स फॉलो होते हैं. पेट लेट डाउन है, प्रॉपर है. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं. सुप्रीम कोर्ट कोई भी पावर कहीं भी इन्वोक करके कहीं भी अप्लाई कर सकता है. Sky is the limit. So that is makes the Supreme Court supreme, and that is required because इसके बाद कोई कोर्ट है नहीं. टेक्निकलिटी के नाम पे सब्सटेंशियल जस्टिस को आप डिनाई नहीं कर सकते और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को अपहोल्ड नहीं कर सकते. दैट्स द प्रॉपर ऑब्जेक्टिव. दैट्स व्हाट आई रीड थ्रू. और सुप्रीम कोर्ट इसी के लिए नहीं बैठी हुई. द लास्ट कोर्ट ऑफ लिटिगेशन इज द हाई कोर्ट. सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर, और वो एक्सेप्शन अब लार्ज अमाउंट में बढ़ता जा रहा है. एंड दिस इज लिटरली सब्जेक्ट टू बी द टेंशन, सब्जेक्ट टू बी वरीड.
कि बहुत सारे एक्ट के थ्रू अपील आ गया है। इट शुड नॉट, इट शुड बी रूटेड थ्रू द हाई कोर्ट। सारे अपील जो है ना सुप्रीम कोर्ट के आने के बजाय हाई कोर्ट जाना चाहिए। दे आर ऑल्सो द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना। सुप्रीम कोर्ट इज हियर टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, not the appellate court. But reality is being transferred into मतलब circumstances driven है, and that's the reason people are a bit confused कि 136 आखिर ये है क्या, अपील और इसमें अंतर क्या है। If you will read order 21 properly, order 21 of Supreme Court rules पढ़ेंगे तो उसमें सारे प्रोसीजर लेट डाउन है, और जब लीव ग्रांट होता है उसके पहले का प्रोसीजर है और लीव ग्रांट होने के बाद का प्रोसीजर। आज के डेट में कोर्ट भी उतना टाइम नहीं देती और केस की डेंसिटी बढ़ी हुई है। कोर्ट ये चाहती है कि वन गो हम सब कुछ समेट करके डिसाइड करते हैं, लीव ग्रांट भी लिख दें, जजमेंट भी पास करें और जो करना हो तुरंत कर दें। बट वो प्रोसीजर बहुत सही भी है और बहुत जगह सबके इसके भी अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। मल्टीपल टाइम्स ऐसा है कि वहां पर कोर्ट कई बार अपना जो स्पिरिट है, जो मैसेज है, वो लूज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोर्ट वहां वो ऑब्जर्व करे उस प्रोसीजर को, सर्टेनली एक ऐसा रास्ता निकलेगा कि हाई कोर्ट से बहुत सारे केसेस ऊपर ना आए, वहीं रुके। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई भी जजमेंट पास होता है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है और सुप्रीम कोर्ट में लीव ग्रांट होता है और अपील बनता है, सुप्रीम कोर्ट को सर्टेनली वहां पे मार्क करना चाहिए कि व्हाट इज द रॉन्ग विथ द इम्पुग्न जजमेंट। यदि सुप्रीम कोर्ट रिलीजियसली इसको मार्क करना शुरू कर दे, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट अक्रॉस द कंट्री ऑल द हाई कोर्ट पढ़ने वाला है, और हाई कोर्ट के जजेस जो है ना, इसको सीरियसली, जो कैजुअली पास करते हैं उसके बजाय वो सीरियसली मैटर को देखना शुरू करें। और सेम कल्चर फ्लो होना चाहिए हाई कोर्ट से भी टू द ट्रायल कोर्ट, बिकॉज जिस समय किसी जज का एलिवेशन, प्रमोशन की बात होती है, उस समय उनके ये सारे जजमेंट के क्रेडेंशियल्स भी देखे जाने चाहिए, और ये भी देखे जाने चाहिए कि आपके कितने जजमेंट पे कितने रिमार्क आए हैं और कितने रिवर्ट हुए। इट रिफ्लेक्ट्स योर जुडिशियल इंटीग्रिटी, कैपेबिलिटी। तो सिर्फ एक लाइन में यहां से नीचे तक यदि आप इस चीज को फ्लो करें और इसको एक सर्टेन, एक प्रॉपर वेटेज दें, इंटायर जुडिशियरी अलाइन हो जाएगी, और जो जिसके लिए जो ड्यूटी बना हुआ है वो वहां पर रहेगा। मेरा अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, मोर देन अ डजन जजमेंट हमने देखे हैं हाई कोर्ट से। इट इज मतलब बियॉन्ड द रिकॉर्ड, ओनली ऑन सबमिशन, विदाउट वेरीफाइंग द रिकॉर्ड, ये जजमेंट हो जाते हैं, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को सर फोड़ना पड़ता है, अननेसेसरी। इट शुड नॉट। तो उसको मैसेज देने के लिए, क्योंकि एवरी इस तरीके के जो कैजुअल अप्रोच है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप मैसेज देंगे, उसको मैसेज देने का क्लियर कट तरीका है सुप्रीम कोर्ट के, माने जिस जजमेंट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग, वहां पे आपका रिमार्क, ऑब्जर्वेशन और लॉ लेट डाउन अंडर आर्टिकल 141 is the most important required thing for the judicial discipline, in my understanding. I'm sorry, I may be wrong or it may be a subject to a debate, but मुझे ऐसा लगता है, I have a very strong feeling on that. Multiple times I verified my this proposition, अपने केस में भी और बहुत सारे केसेस में भी। सिंस लास्ट 2 years कम से कम 100 केस में मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि जहां जहां भी स्पॉट फ्री हुआ है, वहां वहां अननेसेसरी वर्डन नीचे से ऊपर तक फ्लो होना शुरू हुआ। तो डन फॉर द डे। आज हमने कुछ गेस्ट को बुला रखा था,
जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, बट आई एम सॉरी अजय जी, आप बंद कीजिए, वो यदि अवेलेबल हैं तो अपने उसको एड्रेस कर लें। थैंक यू सर। सर नमस्ते सर।